Are you guys able to hear me? Are you able to hear me? Yes, sir. Okay. So what we'll do is we'll write programs on loops. जो हमने कल program किया था, I'll tell you how to write programs on loops. So first things first, we know everything how to start with. So ये stdio conio dot ये हमेशा हमको याद रखना पड़ता है, मतलब we know all these things. So basically what we have to do, the program जो हमें करना है वो वही चीज है, हमको अपना नाम 10 बार लिखना है. So how we'll be able to do that is, हमने लास्ट टाइम आपने वो किया था, वो एग्जाम, वो प्रोग्राम बेसिकली आपने लास्ट टाइम किया था. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल ट्राई टू राइट द सेम प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ लूप्स. So basically what I'll do is, so I'll say, आप थोड़ा सा एक नजर रखिए कि मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. So I'm saying तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, एज आई टोल्ड यू, हमको व्हाट वी हैव टू प्रिंट इज वी हैव टू प्रिंट a name 10 times. So यहाँ पे आप देखिए what we have done is we have used the concept of for loop जो हमने कल देखा है. So we have used that concept of for loop. और यहाँ पे अगर आप देखोगे what I have used an integer I have started that from 0, जो मैंने कहा था initialization. So I'll initialize that value with the 0 and I'll go all the way up to 10. So it will be like I'll be doing it 10 times since we have already understood how this works. So basically इसके अशीतन करान, so I'll start my I variable from 0, I'll go all the way up to 10 and 10 times what I'll be doing is I'll be printing my name. So let's see actually how it goes. So as you can see here, जो आपने last time किया था 10 बार printf statements लिखे थे और 10 बार आपने print किया था. So what I have done here is just we have written a single line. Using that one line we are able to actually print this, as you can see here. So ये किससे possible होता है? With the help of this loop. Is that clear? So agar tu chancho I choose to start kara from 0, I go all the way up to 10. So I am printing this. So this is called as, what is this? Loop, concept of loops. Isha clear कोई issue इस program में? No, sir. Any issue here? No. So I'll go back to that window जो हम whiteboard, I'll go back to whiteboard and I'll try to again explain you इसकी थोड़ी करान actually. Is the whiteboard visible? No, sir, not yet. Whiteboard आओ मैंने? हाँ सर आ गया. Okay, so basically ऐसे क्या करे तन? So हम for loop, उसके बाद initialization, then I have condition, then I have reinitialization, then I have statement. So मैंने आपको, we actually discussed that even yesterday. So what is this? This is the first statement that will be executed. Then this is the second statement that will be executed. Then this is the third thing. Then fourth. And what happens? Flow ऐसे होता है. It goes this way. Then here. Then here. So ये चीज जो है ये सर्कल में होता है.
condition statement reinitialization, condition statement and reinitialization. It will keep on happening in circle. But this initialization phase, it will only happen once. Right? So, if I'll go back to the program, if, please confirm if that program point here. So what is this? This is basically initialization. This part will only happen once. What is this? This is a condition that I have to check. Every time I'll check the value of I. Is the value of I equal to 10 or not? I is less than 10. It's true. So I'll enter inside this. This is the statement. So let me, mark it here. I'll make it as a comment. I'll say statement of the loop. This is statement of the loop. And this is the loop structure. All right. Do you understand this? Yes, sir. Isha, ठीक? Any questions here? Question check guys. यहाँ पे. Right? Is there any question here? Yes, any questions? Please, raise it. Otherwise, I'll move forward a little. मैं थोड़ा सा नया concept आपको बताऊंगा आज. Okay, so let's move forward. So now using the concepts of loop, so let's determine. I will start from 0. We'll go all the way up to 100, and let's determine कौन सी number of even numbers हम निकालेंगे उसमें से. Right? So we'll determine from all the way from 0 to 100 हमारे पास कौन से even numbers हैं. Right? Now will you be able to tell me how we can do this? Do you understand first of all Taruf की question क्या है? So what is the objective that we have to Sir, हमें number of even numbers निकालने हैं या even numbers कौन से हैं वो? कौन से even numbers? अच्छा. Zero, वो number of even numbers से काटो इस time बाद. I'll start from 0, 1, 2, 3, 4, 5, all the way up to 100. So मुझे क्या मिलना चाहिए? I'll give you this list. आप मुझे बोलोगे सर आपका आंसर है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके आपका आंसर. आप मुझे बताइए इसके लिए आप क्या करोगे? How would we write the program for this? सर इसमें हमें मॉड्यूल होगा ना बार-बार रिपीट मॉड्यूल 2. हाँ तो फिर सोचो इस क्या करो यार मतलब व्हाट इज द थिंग दैट विल डू हियर. पहले आप बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है? जी सर. What is the question? Is everybody have you understood the question? So the point that we are trying to make here is, so what I'll do. So what we will do here is I'll start my loop. I'll say okay, my loop is going to start from 0. I will run my loop all the way up to 100, and every time what I'll do is I'll increase it by 1. ये फिलहाल चुस बो loop बनान बकर for loop कत पे start तब I चुस 0 पात वुच बो क्या I छा less than 100. Right? So this is my condition. This mean initialization. This mean condition. Then what is this? Reinitialization. This is reinitialization. ठीक है, ये reinitialization है. उसके बाद तो मेरे पास मतलब मेरे पास पहले I 0 आएगा, then when I will be 1, then it will be 2, then देख हर बार मॉड्यूल चेक करना मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 2 is तो जो हमने इससे पहले के प्रोग्राम में किया था जब मैंने आपको बोला था कि 10 छा इवन के ना 12 छा इवन के ना 11 इवन है कि नहीं, हमने यही किया था ना. बुश नंबर बात कर बता डिवाइड 2 से बुश में मिला रिमाइंडर 0 के ना. अगर मैं मिलो रिमाइंडर 0, सो अगर ये ऐसे हो गया, इफ ये 0 है मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख प्रिंट एफ दिस नंबर इज इवन.
ठीक है? Is that clear? Yes, sir. Huh? Yes, sir. So let's do it a little bit more formally. So पहले हमें क्या करना था? First thing I'll have to, iterate 0 to 100 with one. Because मैं चूचूं 0 छाई उनके ना चूचूं 2 छाई उनके ना चूचूं 3 चूचूं 4 and so on. So I'll have to इसीलिए चूज कर start 0 पे हमेशा क्या कर बे increment 1. So पहला चीज मुझे क्या करना है, मैं आइटरेट करूं फ्रॉम 0 to 100. उस ऐसे में 0 मिल गया तो दूसरा स्टेप क्या होगा, मुझे 0 आ गया, आई विल हैव टू चेक इफ दैट नंबर जो आई जिसको मैंने नाम रखा था, अगर मैं उसको मॉड करूंगा 2 के साथ, अगर मुझे वो 0 मिल गया, इफ दिस इज ट्रू देन A1, अदरवाइज तो मुझे कुछ नहीं करना क्योंकि मुझे सिर्फ A1 नंबर से चाहिए, मुझे और तो नहीं चाहिए. नाउ इज दैट क्लियर? आर यू डू यू गेट दिस पॉइंट? Yes, sir. तो फिलहाल हम इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे, आई विल से फॉर I equal to 0 initialization I less than equal to 100 क्योंकि मुझे 100 तिश्मे वुचुन छा इवन करना I plus plus. ठीक है, तो ये मेरा लूप हो गया. लूप के अंदर मैं क्या करूंगा, लूप के अंदर मैं देखूंगा if I mod 2 equal to 0 printf % d is A1. Is that clear? So God initialized क्या है guys? God initialized I में 0, मैं चेक करूंगा क्या वो 100 से कम है, वो तो है 100 से कम ट्रू है, तो मैं अंदर आऊंगा इसके अंदर, मैं चेक करता हूँ आई mod 2 छा 0 बकर प्रिंट स्विचेबल, नेक्स्ट टाइम वो 1 हो जाएगा, देन वो 2 हो जाएगा, देन हो जाएगा वो 3. Is that clear? Yes, sir. So so फिलहाल इसका सॉल्यूशन तो ये दिस इज द लॉजिक हाउ वी एक्चुअली अप्रोच दिस थिंग. हम ये लॉजिक के हाउ डू वी गो अबाउट दिस लॉजिक. सो दिस वाज अबाउट basically what this is, how do we print actually the number of कुछ है A1 number आता है या कुछ है और number आता है. So would you be able to tell me now, can you write a program उसमें वन कि मैं कितना A1 number च from 0 to 100 rather than तशुन में वन कि 2 छ A1 किंतु सर 4 छ A1 5 6 छ A1 8 छ A1 वो नहीं मुझे बताना, आपको मुझे बताना है 0 से लेके 100 तक कितने A1 है, नंबर ऑफ A1 नंबर्स. कैन यू डू दैट? सही क्यों तो करें. Are you able to see this C programming window? No, sir. Yes, sir. So फिर एक तो प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको कहा था कि इस पूछो कुछ A1 नाउ, राइट. सो I'll again say int I equal to 0, तो मुझे 100 तक जाना है. So basically मैं क्या शहर कुन जाए वो कुछ बनान, अगर यूज ती नंबर ई अगर बता मॉड चुस करान 2 अगर मैं तारी 0 द्राव, if I mod 2 is 0 then printf ठीक है. So basically ऐसे क्या करो, we'll start from 0 इसका सो 100 से बराबर, बट हर का नंबर युस्ते इस वुचो 0 है 1 है 2 है उस वुचो सो नंबर छा 2 से गसान डिवाइड पूरी किन, अगर मैं 0 से मिलान तेले मान बो सुचो A1, अगर नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना. तो आप मुझे यहाँ पे बताओ ये कौन सा इफ स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है. Simple.
Yes. Simple if. So this is called as simple if statement. So you should simple if statement. Meshna adzurat else keen kya is meshna akoi way zurat. Here. तो यहाँ पे आप देखो हमें मिल रहे हैं ये नंबर्स 25, 54, 56, 58. तो वो जो 2468 वो स्क्रीन के ऊपर है. क्या हुआ तो समझ. अब मुझे आप बताओ अगर कोई ये तन इंस्टेड ये कर ये क्या मुझे देगा वहां से. What it will give me back? Odd numbers. It should give me odd numbers. So Bakari change it. It's odd. देखिए आज आई ना मैंने odd number 53, 55, 57, 61. ठीक है. Is that clear? सर अगर हम ये ऊपर वाले देख लें के नंबर्स ये देख सकते हैं. हाँ वो भी देख सकते हैं. So मतलब basically what happens is so I'll do this, I'll do this. See. ठीक है आया. Right? So मैं करूँ next line के मैं करूँ tab. Is that clear? ठीक है. हाँ सर. So अब मुझे आप एक बात बताओ जैसे मैंने आपको कहा ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है. इसको सिर्फ मैं तो 0 to 100 पता नहीं मैं तो कुछ इवन नंबर या कुछ ऑड नंबर. अब आप क्या करोगे आप यही प्रोग्राम लिखोगे मगर मैं गश कुछ इवन नंबर तो वनी मैं कता इवन नंबर ताशु समझ यवान. Yes, anybody? Yes sir. When we make it heko to isu करित how would we do that? सर एक और वेरिएबल रखेंगे इफ स्टेटमेंट में तो जब हमारी कंडीशन ट्रू होती रहेगी उसका भी इंक्रीमेंट हम करते रहेंगे बाय वन. कंडीशन होगी मैं काउंट करूं है ना. मैं आपको बोल रहा हूं जैसे में जो 0 मिलेगा डिवाइड पूरा हो जाएगा आप काउंट करना 0 से 1 बात कर जी 1 से 2 2 से 3 3 से 4. ठीक है. तो इंस्टेड मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ चलो मेरे पास इंटीजर ai है और ab है और मैं बोल रहा हूँ चलो इसको तो आप निकाल ही दो बाहर मुझे ये चाहिए ही नहीं. मैं मशी से मान नहीं कि कौन ये है कौन नहीं है. मैं आपको बोल रहा हूँ a++. ठीक है. राइट. ठीक है. ये आवता है समझ. वहां क्या करूं मैं ये भी कंडीशन के ट्रू बुशस करा इंक्रीमेंट जैसे कंडीशन ट्रू हो गया. सो व्हाट आई विल डू नाउ हियर आफ्टर लूप को खत्म बुशस बना मैं printf number of even numbers are ठीक है. Now let's see what happens here. क्या लिख रहा है नीचे number of even numbers are 50. आप देखिए. ठीक है. वंकेश मैं नंबर ऑफ इवन नंबर्स आर 50. इज दैट क्लियर. तो फिक्र में क्या कर अब समझ. डिड यू अंडरस्टैंड. यस सर. मगर आप मुझे एक बात बताओ मैं क्या लिखी printf स्टेटमेंट इधर नेबर के मैंने ये इफ लूप के बाहर क्यों लिखा. मान लीजिए मैं इसके अंदर लिखूंगा ये लिखिए तो इसके अंदर मैं यहाँ लिखूंगा इसके अंदर व्हाट विल हैपन. ये हमेशा प्रिंट होगा. आप देखो क्या हो जाएगा. क्या कुछ ऐसा हो जाएगा.
Got you वन number of even numbers 1 पच 1 2 पच 3 को ये लेट even number मगर मैं क्या ये आपको डिपेंड करता है तो लॉजिक क्यों देखो इससे पहले हमारा लॉजिक क्या था मुझे देखना था एक पर्टिकुलर नंबर इवन है कि नहीं है तो मैं कैसा तमीज़ पाए लगे जैसे ही वो कंडीशन चेक होता है इसीलिए मैंने वो इफ स्टेटमेंट के अंदर लिखा लेकिन यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एक बार मतलब जब ये सारा खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं ये पूरी लूप मार्क ले when everything will be over after that I should be able to understand what is happening और आप में से मुझे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा सर जब भी आप फॉर लूप यूज करते हो आपने कहा था फॉर लूप के बाद ये स्टार्ट होगा लेकिन हमने तो स्टार्ट ही नहीं किया था लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है ठीक है लेकिन आपने तो नहीं पूछा कि सर आपने तो किया ही नहीं लेकिन ये तो कोई एरर नहीं बता रहा है आप देखो अगर मैं इसमें ये भी लगाऊंगा ये मैंने तो एरर की है देखिए let's execute it okay sorry I'll have to use clear screen ठीक है चलो ना तो थे बट you guys didn't ask me sir whenever we write a loop हमें ये ब्रैकेट सीखनी पड़ती है ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ होता है ब्रैकेट बंद कहाँ होता है लेकिन अभी हमने वो ब्रैकेट्स लगाए नहीं लेकिन ये फिर भी काम कर रहा था ऐसा क्यों ये उसने तो वही काम करा ये वाला जो पार्ट है हमने ये ब्रैकेट यूज नहीं किया था isn't it right so what happens basically जो भी हम ये यूज करते हैं कोई भी स्टेटमेंट्स हो चाहे वो फंक्शंस हो चाहे फॉर लूप हो चाहे इफ हो अगर तत् अंदर कोई स्टेटमेंट लिखा आख स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट तो मैं चाहे ब्रैकेट्स यूज करूं या नहीं करूं दैट विल वर्क इफ इट इज सिंगल स्टेटमेंट अगर ये एक स्टेटमेंट होगा ये काम करेगा अगर ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे देन देयर इज अ प्रॉब्लम तब जाके वहां पे प्रॉब्लम होती है सो लेकिन मैंने फॉर के अंदर डायरेक्टली क्या लिखा था एक इफ स्टेटमेंट इज अ सिंगल स्टेटमेंट चाहे मैं कितना भी बड़ा इफ स्टेटमेंट लिखूं वो एक ही स्टेटमेंट सो दैट मींस अगर मैं ब्रैकेट्स यूज भी करूं या नहीं भी करूं स्टिल इट विल वर्क बिकॉज आई एम यूजिंग अ सिंगल स्टेटमेंट बट एज अ गुड प्रैक्टिस व्हाट यू शुड ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स चाहे आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हो या मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख रहे हो यू शुड ऑलवेज यूज ब्रैकेट्स इज दैट क्लियर सर फजूल सवाल एक है अगर ये ब्रैकेट हम स्टार्ट करते हैं ये कहाँ पे एंड फिर होता है exactly. ये फजूल सवाल नहीं है अगर मैं कर रहा हूँ ये ब्रैकेट स्टार्ट अगर ये हट ये बेसिक आपको आंसर कहाँ से मिलते हैं यहाँ से देखो हम देखेंगे आज क्या गाइस ये मुझे क्या बता रहा है एरर व्हाट इज द एरर क्या इसमें स्टेटमेंट मिसिंग मतलब मैं ब्रैकेट स्टार्ट कहते हैं करूँ मगर मैं से बंद करूँ मत किया नाउ योर क्वेश्चन इज अगर आपने ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट किया आपको एंड कहाँ पे करना है एंड तन करन ये बसान लूप मकले लूप कहाँ पे खत्म होगा लूप के तो आपको स्टेटमेंट्स पता है ना आपको पता ना कि लूप के अंदर मैं बार बार क्या कराना चाहता हूँ क्या ये बार बार ये प्रिंट कराना चाहते हो नहीं क्या बार बार आप ये आई मॉड 2 कराना चाहते हो हाँ यस क्या बार बार A++ कराना है मुझे हाँ करना है तो मतलब ये लूप ये कहाँ पे खत्म करना है कहाँ पे शुरू करना है ये डिपेंड करता है हमारे स्ट्रक्चर पे जैसे इफ है इफ का इतना स्टार्ट इफ मुझे पता है मुझे कंडीशन लिखनी पड़ती है उसके बाद इफ स्टार्ट होता है इफ के अंदर मुझे क्या करना है इफ अंदर से A++ लेकिन लूप के अंदर मुझे क्या करना है लूप के अंदर मुझे सारा कुछ करना है ये तीनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करनी है इज दैट क्लियर मान लीजिए आप चाहते हो कि ये नंबर ऑफ इवन नंबर्स भी बहुत बार एग्जीक्यूट हो तो क्या कर मैं यहाँ पे करूंगा खत्म लूप को ये कहाँ पे डिपेंड होता है बकरा ये लूप खत्म कि बकर ये लूप खत्म ये केम को डिसाइड ये बेसिकली मेरे लॉजिक ने डिसाइड किया मैं क्या चाहता हूँ कि लूप के अंदर बार बार एग्जीक्यूट क्या हो उसके हिसाब पे डिपेंड इज दैट तो फिक्र भी मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे हाँ जी सर ऑलराइट
So it depends on you actually. Any questions here? Kya question cha? Yes, any questions? Do we have any questions? Now please confirm if whiteboard is visible. Whiteboards are visible? हाँ सर. Okay. So आप ये दोनों programs खुद से फिर से लिखोगे because since आप दोनों में हमने लिखे हैं class में तो आप you will try it again on here. Now let's move a little. Let's talk about prime numbers. Prime numbers आपको पता है? How do we know 13 is a prime number? Yes, how do we know 13 is a prime number? Do not waste the time. 13 कित पर prime number? So factor कोई Because नहीं, There's one two or factors. One or one in itself. So I'll start dividing bakar 13 mod 1 all the way up to कितना कर पर 13 mod 13. मैं यहाँ पे देखता हूँ रिमाइंडर तो 0 मिल रहा है. यहाँ पे भी देखता हूँ रिमाइंडर क्या मिलता है. यहाँ पे मैं देखता हूँ मानजा कुंजा 0 मिला रिमाइंडर के में. मान लीजिए 13 mod 2 अच्छा जहाँ मिलान 13 mod 3 13 mod 4 5 6 all the way up to 13. So prime number वो होता है जिस completely should divide का 1 से by itself. उसके बगैर कभी नहीं होता वो completely. When I say completely divide, it means the remainder comes out to be 0. Is that clear? ठीक चाहिए? yes, sir. Right? Now, if I will give you any number, 55. Now, can you write a program and tell me if this number is prime or not? Can you do this? Logic शा होता है logic क्या है? Okay, log to divide करूँ. Completely divide और वो भी मैंने आपको कहा कैसे होता है mod से. So अगर सो mod 15 mod I अगर सो 0 जरा बराबर तब तो वो completely divide हो गया. अगर वो 0 से नहीं हुआ तो completely divide नहीं हो गया. अब आप मुझे बताइए क्या आप ये प्रोग्राम लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? सर तो मतलब जो भी इससे पहले नंबर्स होंगे हमें उन सब से इसको डिवाइड करना है. तो आपको कैसे पता चलता है प्राइम था कि नंबर? सर वो पहले सवाल मैंने वही पूछा ना, कहाँ थे नंबर? तो प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स में कैसे पता चलता है कि वो प्राइम है कि नहीं? फैक्टर्स 1 और अपने आप के है ना? तो जब हम फैक्टर्स बोलते हैं तो बेसिकली इंटरनली क्या है? डिवाइड ही करा. यस सर. सो ये 55 और तो आप बताओगे कर 55 को मैं डिवाइड करने लगूंगा 1 से 2 से 3 से 4 से बात वो ये कैसे लेट चुका कंप्लीटली डिवाइड. तो मुझे कितनी अगर ये प्राइम होगा ये कैसे लेट कंप्लीटली डिवाइड अपने आप अगर मैं तो ये 2 बार होगा. अगर मैं 1 से लेके 55 तक स्टार्ट करूंगा जस्ट डायलेट का सम. यस सर. अगर मैं 2 से लेके उस नंबर से लेके -1 तक करूंगा तो कितनी बार कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए? 0 टाइम्स. कभी नहीं. सुना? अगर कहा नंबर डिवाइड गो कंप्लीटली अगर कोई से रिमाइंडर द्राओ 0 गो मतलब सुच नॉट प्राइम, वो प्राइम नहीं है. लेकिन अगर वो डिवाइड हुआ ही नहीं कभी तो उसका मतलब क्या हो गया? वो क्या है? वो प्राइम नंबर है. इज दैट क्लियर? यस सर. जस्ट गिव इट अ ट्राई. सो पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू क्रिएट व्हाट इज कॉल्ड एज एक लॉजिक बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ इस चीज का. फ्लो चार्ट के बाद फिर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट. सो फर्स्ट यू मेक अ फ्लो चार्ट, then you write program. So what I want is I want you guys to try this out. Write a program whether a particular number is prime number or not.
तंपत करो इस ये 0 से लेके 100 तक कौन कौन सा नंबर प्राइम है, करो इस तंपत। फिलहाल पहले क्या करेंगे हम, जैसे हमने इससे पहले किया था कि एक नंबर उठाया था, फिर हमने देखा क्या ये नंबर क्या कहते हैं इसको, इवन नंबर है कि नहीं। तो जब हमारा वो खत्म हो गया, फिर हमने देखा 0 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर। अब आपको मैं बोलूंगा, से फॉर एग्जांपल आई टेल यू, टेल मी फ्रॉम 0 से लेके 1000 तक कितने इवन नंबर्स है। हम ये कर सकते हैं ना, you can change that program and do it. So in the same way, what is going to happen is, so I'll give you a number, you will tell me whether that number is prime or not. All right, so you will write a program. Any questions here? Any questions? No, sir. No, sir. So I hope you guys will do it, and I will see you in the next class after you have done all this. Show me these programs, and please, save these programs, keep it with you. All these homeworks, please do these homeworks, and one day I'll check कैसे मैं एंडस पर मार्क्स दे। ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे पास कि जो मुझे बताएगा कि आपने को कितने मार्क्स मिलने चाहिए, कितने। So, जो भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, I keep a track of that. मेरे पास वो प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। So at the end of the day, I'll ask you guys to mail me all these programs. Right? So, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, तो लिखे हुए प्रोग्राम सर अपने पास इसको सेव करके रखो। So try this out, for writing whether a particular number is prime or not. और जो 2 प्रोग्राम्स अभी हमने क्लास में किए, वो भी आप ट्राई करोगे रेप्लिकेट कर। ओके, कोई क्वेश्चन अगर है तो यू कैन आस्क। If there is any question, please ask. Okay, so I'll see you guys in the next class then, but please write all these programs, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ वो programs आप लिखा कीजिए। All right?